افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ پاکستان پر امن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغانستان علاقائی ترقی استحکام کے لیے اہم ملک ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ممبر ملکوں کو ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ساتھ مل کر چلنے کی پیشکش۔ پاکستان علاقائی ترقی، استحکام اور روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ سی پیک ایس سی او ملکوں میں روابط کے لیے ضروری ہے۔ چین کے تعاون سے سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اختتامی تقریب سے خطاب میں بولے، غزہ میں جارحیت المیہ ہے۔ ہم غزہ میں نسل کشی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فلسطین میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ ویلکم ٹو اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایس سی او کی ترقی کے لیے آواز بلند۔ دنیا کی 40% آبادی کے بہتر معیار زندگی کی خاطر مل کر کام کرنا ہوگا، شہباز شریف کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او کے سربراہی اجلاس کے افتتاحی خطاب میں اہم عالمی اور علاقائی امور کا احاطہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، خطے کی پائیدار ترقی کے لیے باہمی تعاون اور روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ علاقے کے ممالک میں ٹرانسپورٹ اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے بہت مواقع ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، تاہم عالمی برادری کو افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ A stable Afghanistan essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ گیم چینجر منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ The China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail, and digital infrastructure that enhances integration and cooperation across our region. شہباز شریف نے ایس سی او رہنماؤں سے خطاب میں کہا، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش خطرات عالمی چیلنج ہے۔ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے باعث بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ قدرتی آفات اور غربت کے خاتمے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں۔ دو بڑے تنازعات جاری ہیں جن کے عالمی اثرات مختلف ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، ہمیں ایماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ اعتماد کی کمی، دوستی اور اچھے ہمسایوں کے اصولوں میں کوئی کمی ہے تو خود احتسابی کرنی چاہیے۔ یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے میں بہت پیچھے ہے۔ قرض کا بوجھ سنگین مسئلہ ہے۔ کووڈ نے ترقی پذیر ممالک کو سخت نقصان پہنچایا۔ بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد۔ کہا، بھارت نے صدارت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے مکمل حمایت فراہم کی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ٹویٹر پیغام۔ کہا، اسلام آباد سے واپس جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ۔ جے شنکر نے میزبانی پر حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایس سی او کے رکن ممالک پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا انعقاد کامیاب رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایس سی او کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ۔ کہا، ایس سی او نے عالمی تجارت میں رکاوٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ معیشت، تجارت، روابط اور ٹیکنالوجی سمیت اہم معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ ایس سی او کے سیکرٹری جنرل جانگ منگ نے کہا، پاکستان نے ایس سی او کی میزبانی کا کامیابی سے انعقاد کیا۔ اجلاس میں عملی اقدامات پر زور دیا گیا۔ سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ اور توانائی میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ تنازعات، اختلافات، مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور۔ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد قرار۔ ایس سی او کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عوام کو سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے راستے کا آزادانہ اور جمہوری طور پر انتخاب کا حق حاصل ہے۔ اعلامیے کے مطابق سیاست، سلامتی، تجارت، معیشت، مالیات اور سرمایہ
सरमाकारी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। रुकन मुल्कों ने इस्लामाबाद एलामिये पर दस्तखत कर दिए। 23वें इजलास में तंजीम के बजट, SCO सेक्रेटेरिएट दस्तावेजात पर भी दस्तखत किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी के इलाकाई एग्जेक्टिव कमेटी की भी मंजूरी दी गई। रुकन मुमालिक ने नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक करते हुए दस्तावेजात पर दस्तखत कर दी। 2024-25 के दौरान तंजीम की सदारत चीन के सुपुर्द कर दी गई, जबकि अगले बरस कॉन्फ्रेंस की सरबराही रूस को देने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल SCO के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि SCO इजलास में अहम फैसले किए गए। 23वें SCO सरबराही इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने वज़ीर आज़म की जानिब से अफगान इशू को उठाना अहम करार दे दिया। अगर कोई रुकावट है रीजनल कोऑपरेशन में, ताउन में पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के दरमियान, वो उनकी नज़र में कम अज़ कम अफगानिस्तान है। और फिर इस चीज़ पे जोर देना कि अफगानिस्तान की सरजमीन से टेररिस्ट अटैक्स उनके मुल्क पे नहीं होने चाहिए, तो किसी हद तक वो उन सब मुल्कों के बिहाफ पे भी बोल रहे हैं, इसलिए कि उनको भी मसले मसाइल हैं। हमें सबसे बड़ा मसला जाहिर है TTP के हवाले से, लेकिन उनको भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान से। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिनाह कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर मौजूद मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया। आगे बढ़ते हुए सियासत के मैदान से कुछ अहम खबरें। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए आज लगेगी जाती उमरा में अहम बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुँच गए। दोनों रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ को मुश्तरका मुसव्वदे पर कायल करने की कोशिश की जाएगी। इसी बारे बात करते हैं मोइन अजहर से। मोइन, बताइएगा, सदर आसिफ अली जरदारी की भी मुलाकात में शमूलियत मुतवक्किल है? जी, इस सिलसिले में ज़राए के मुताबिक जो है अभी कुछ देर में 7 बजे के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा के लिए अपनी रिहाइशगाह से रवाना होंगे। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जो है वो इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद है, वो भी इधर आएंगे और आसिफ जरदारी साहब एयरपोर्ट से जो है वो सीधा जो है जाती उमरा आएंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का भी इम्कान है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, कि वो भी जो है इस मुलाकात में शामिल होंगे। और इसमें जो है आईनी तरमीम के हवाले से जो है एक बाहमी जिसे कहते हैं कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा, जिसके तहत जो आईनी तरमीम जो है उसको जो है उसके मसवदे के ऊपर जो है जो कल पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान डिस्कशन हुई थी उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने रखा जाएगा और उनकी मशावरत के बाद एक हतमी जो है राह अमल जो है वो बना के उसमें जो है उस पर कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा। ताहम इस सिलसिले में ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो अशाइया भी देंगे। अशाइया में मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछ के ठीक है, अशाइया भी दिया जाएगा। शुक्रिया मोइन, आप बता रहे थे। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पर इब्तदाई इत्तेफाक राय जमहूरियत की जीत करार दे दिया। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि उम्मीद है कि तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफा देंगी। मिसाक जमहूरियत का आगाज़ बेनज़ीर भुट्टो ने किया, आसिफ जरदारी ने उस पर अमल किया, बिलावल उसके नामुकम्मल एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। बातचीत ही जमहूरियत की असल ताकत और बंद दरवाजे खोलने की चाबी है। आईनी तरमीम पर इत्तफाक की सोच और जज्बा जमहूरियत पार्लिमान की बालादस्ती मज़ीद मजबूत करेगा। और ख़बर यह है कि नेशनल पार्टी और BAP के पार्लिमानी ग्रुप का मुश्तरका इजलास हुआ है। पार्लिमानी ग्रुप ने आइन में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट मुरतब करके आइनी कमेटी के हवाले कर दिया। ड्राफ्ट में बलूचिस्तान असम्बली के लिए 80 जनरल नशस्तें, ख़वातीन की 18 मखसूस नशस्तें और अक़लियत के लिए 2 नशस्तें तजवीज़ की गई हैं। इसी बारे बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलूच से। रशीद, बताइए इजलास बारे। जी देखिए, काफ़ी दिन पहले BAP और नेशनल पार्टी का एक मुश्तरका पार्लिमानी ग्रुप बनाया गया था, जो 4 रुकनी पार्लिमानी ग्रुप है, जिसमें खालिद मक्सी हैं, जहां बुलेदी हैं, पुल्ले बलोच हैं, मंजूर काकड़। आज इन्होंने एक ड्राफ्ट मुरतब की है, लेकिन वो ड्राफ्ट जो है बलूचिस्तान से मुताल्लिक है। इससे पहले जो बलूचिस्तान असम्बली के अराकीन थे वो हैं कोई 65 के करीब, लेकिन अब उन्होंने कहा जो तरामीम पेश की हैं उनमें कहा जा रहा है कि 18 जो है नशिस्तें बढ़ाई जाएं जनरल नशिस्त के लिए, सूबाई असम्बली के लिए, और इसके अलावा ख़वातीन की भी नशिस्तें बढ़ाई जाएं और अक़लियत की नशिस्तें बढ़ाई जाएं। और टोटल उन्होंने जो फिगर दिया है उनके मुताबिक कि बलूचिस्तान असम्बली की जो नशिस्तें वो 101 के करीब किए जाएं। और ये ड्राफ्ट जो उन्होंने आईनी कमेटी के हवाले कर दिया है और नेशनल पार्टी ड्राफ्ट आईनी कमेटी के हवाले कर दिया गया। रशीद बलूच हमें बता रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब का PTI पर सियासत ने बच्चियों का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। निजी कॉलेज में बच्ची से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर मरीम नवाज़ ने कहा कि ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। पुलिस को गुमराह करके एक झूठी मुहिम चलाने की कोशिश की गई। पहले कहानी घड़ी गई और इल्ज़ाम लगाया गया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, इसीलिए ऐनी शाहिद भी नहीं था। जरताज गुल की बहन प्रोफेसर हैं, कहा गया उन्होंने बच्चों को उकसाया। जो भी इस प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है उनको क्रैक डाउन करके पकड़ा जाएगा। जिन अकाउंट से उकसाया गया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसा इशू पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहा था, तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है। जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, फौरन जो है उसको पकड़ा जाए। अपनी डूबती हुई मरती हुई सियासत को रिवाइव करने के लिए घेराव जलाओ करने की साजिश की है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे और कई अहम मुल्की सरबराह जो पाकिस्तान में मेहमान थे उनकी इस इजलास में शिरकत के बाद रवानगी का सिलसिला जारी है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी का सिलसिला जारी है। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से, जहाँ पे वफाकी वज़रा अहम ममालिक के सरबराहान को अलविदाइया कलमात के साथ उनको रुखसत कर रहे हैं। और इन वज़रा में देखा जा सकता है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान हैं, वज़ारत तिजारत अब मुसद्दिक़ मलिक भी यहाँ पे मौजूद हैं। SCO इजलास में शिरकत के बाद गैर मुल्की मेहमानों की रवानगी के ये मनाजिर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ 100 इंडेक्स 365 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 86,000 की नफसियाती हद उबूर करके आओ। जबकि आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमतों में कमी आ गई। ज़िया कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स 365 पॉइंट्स के इजाफे से 86,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया और दिन का अख्तिताम 86,205 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 444 कंपनियों का कारोबार हुआ। 227 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 149 की मालियत में कमी हुई। इधर करेंसी मार्केट में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब आलमी मार्केट और मकामी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा होने से फी तोला सोना 2200 रुपए बढ़कर 2,77,200 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 1886 रुपए इजाफे से 2,37,654 रुपए हो गई। जबकि आलमी मार्केट में सोना $22 के इजाफे से $2,675 फी औंस पर पहुंच गया। ज़िया कुरैशी, GNN न्यूज़, कराची। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जाती उम्रा, जहाँ पे ये मनाजिर मुल्क की सियासत में एक बार फिर से हलचल। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुए। 26वीं आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए जाती उम्रा में अहम बैठक होगी। ये मनाजिर हैं जाती उम्रा के, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ज़ोहराना देंगे, इशाइया देंगे मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के एज़ाज़ में। और 26वीं आईनी तरमीम पर जो मुश्तरका मुसव्वदा है उस पर नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान इस मुसव्वदे के ऊपर राज़ी हो चुके हैं, कायल हो चुके हैं। और अब साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए जाती उम्रा में अहम बैठक होगी, जिसके लिए सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज वो पहुँचेंगे जाती उम्रा में, जबकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं और वो भी इस अहम मीटिंग में मौजूद होंगे।